Hello friends, myself Dr. Rajiv Gupta. I am taking a lecture series in stereochemistry where I am explaining some MCQs of stereochemistry. So, in a previous lecture, I explained total 6 questions, total 6 MCQ questions. Now the question number is 7. What is the question? The question is the molecules shown are. So here again we have to see the isomeric relation between these two structures or between these two molecules. So these could be constitutional isomers, enantiomers, diastereomers, identical or none of these. Constitutional isomers are that isomers where the sequence of bonding of atoms is exactly same in both the molecules. Different in both the molecules. So these type of isomers are called constitutional isomers or regioisomers. In enantiomers, the both molecules will be mirror image of each other, but both are not superimposable on each other. Then diastereomers are that molecules which have same molecular formula and same molecular weight, but these are not mirror images of each other, and also these have same sequencing bonding of atoms. And identical compounds are that structures or that compounds which are mirror images of each other and also superimposable on each other. So check these two structures. The two Fischer projections are shown. So here if we see the configuration of these two carbon atoms, then this carbon atom is achiral carbon because both the hydrogen atoms are present on the same carbon atom. Here this carbon is also a achiral carbon. Okay, now only this second carbon we can say that it is a chiral carbon because the four groups are entirely different which are attached to this tetrahedral carbon atom: methyl group, bromo group, hydrogen atom, and this CH2OH group. So all the four groups are different which are attached to this or bonded to this tetrahedral carbon. So these both carbon atoms are chiral carbon. Now we have to check the configuration of this chiral center. Okay, if chiral center configuration is same, then these will be identical, and if chiral center configuration are different in both case, then these will be enantiomers. So these compounds could not be constitutional isomers or could not be diastereomers. Okay, so these two options A and B, C has been removed. Now these could be enantiomers or identical. Now we have to check. See here the configuration at this chiral center is changed. Okay, is at this chiral center where these hydrogen atom and bromine atoms are interchanged like this. Okay, and the position of methyl group and this CH2OH group is same in this second structure. So these both are enantiomers. Okay, so the answer is enantiomers. The answer is B. Now the next question is the molecules shown are. Again we have to check the isomeric relation between these two structures. See, in this structure there are two chiral centers are present. Okay, this carbon is a chiral carbon
and also this carbon is also a chiral carbon, because all the four groups attached to this carbon, this first carbon, are different. This is CH2CH3 ethyl group, chloro group, hydrogen, and this CHCl CH2CH3 whole group work as a whole group. So this carbon is chiral carbon, and also this second carbon is also a chiral carbon. So here two chiral centers are present in this structure. Again, here also two chiral centers are present in this second structure. Now, how we move to check the isomerism? First we see constitutional isomerism. For constitutional isomerism, the molecular formula or molecular weight should be same, but their sequence of bonding of atoms should be different. But here in these two structures, the sequence of bonding of atoms are exactly same. So we will move towards stereoisomerism. Okay, to stereoisomerism. How we will check this? We can make even changes in this first structure. So what we could do, first we interchange these two groups and we get this structure. I am drawing this structure. Here Cl, and here we get CH2 CH3, and here hydrogen. Now we make second change. This is first interchange, this is second interchange. In this second interchange we will get exactly same configuration on this chiral center. So now what we do, we interchange this like choosing these two groups. So we get Cl, here hydrogen, and over here CH2 CH3. So check this portion. This is exactly same to this portion. Okay, ClH CH2 CH3, ClH CH2 CH3. So these compounds could never be enantiomers because the configuration at one chiral center is exactly same. Okay, now we have to check the configuration over this second chiral center. Now here if we see that the CH2 CH3 ethyl group position is exactly same at downside as we are seeing, but the position of hydrogen and chlorine atoms are interchanged. Okay, so actually the configuration is different at this second chiral center. Okay, the configuration is actually different. So the configuration on this first chiral center is same, but at this second chiral center is different. It means these both isomers are not mirror images of each other. So these type of isomers which are not mirror image are called diastereomers. So the answer is B. Okay, now these options are again cancelled. Now the answer is B. How we check this? Suppose the first chiral center has R configuration. Suppose, so in other structure the first chiral center will also have the configuration R or assignment R. But suppose if the second chiral center has the configuration R, then the second molecule or second structure will have its opposite configuration S. So these both will not be mirror images. So these type of compounds or these type of two structures have diastereomeric relation. Okay, so these are diastereomers. Now the second question, ninth question is, the molecules shown are
again we have to check isomeric relation between these two structures. These two are cyclic compounds, cyclopropane basic skeleton ring system. Over this cyclopropane ring, two functional groups are present, fluorine and methyl. Here fluorine and methyl. So obviously these have same molecular formula. So this constitutional isomerism concept is cancelled. Okay. Now what we have to check? We have to check the mirror image nature of these two compounds. So how we will check this? We have to check superimposability of these molecules. Suppose these two molecules are superimposable on each other, then these will be identical. But we cannot superimpose these both structures. Okay, we cannot superimpose. You can try this. You can rotate or you can turn this molecule in any manner. You cannot put this molecule inside this, or you cannot superimpose this molecule over this. Okay, so these structures are not identical. Okay, now what we check, their mirror images nature or not mirror image nature. So these molecules are actually mirror images of each other. See, if we rotate this structure by 90 degree by 180 degree angle, okay, out of the plane, 180 degree angle out of the plane, so what we get, we will get this type of structure where this methyl group, by this 180 degree rotation, this methyl group will go to this upside. Here this fluorine atom which is downside will go to upside. Means here we get fluorine atom and here we will get methyl group. So now check these two structures. Okay, see here this structure and this structure is same, exactly same. We have just rotated दिस स्ट्रक्चर, हमने इस स्ट्रक्चर को सिर्फ थोड़ा सा 180 डिग्री घुमाया है रोटेशन करके, और उसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया है. तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और जो मैंने नया स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली सेम है. अब हमको इन दोनों के अंदर कंपेयर करना है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों की दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं. और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों की दोनों आपस में नॉट सुपर इम्पोजेबल हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते. दोनों की दोनों मिरर इमेज हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों मॉलिक्यूल किरल मॉलिक्यूल हैं और दोनों आपस में एनिशोमर्स हैं. ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये डायस्ट्रोमर्स नहीं हो सकते और ऑप्शन ई भी यहाँ पॉसिबल नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The molecules below are, again we have to check the isomeric relation between these two structures. On this cyclopropane ring, we are seeing two fluorine atoms are present on a single carbon atom, means this is a JAM type isomer, JAM. But here the fluorine atoms are present on these two carbon atoms, on these two different carbon atoms, one fluorine atom. एक एक फ्लोरीन एटम यहाँ अलग अलग कार्बन एटम पर उपस्थित है. तो मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? विसिनल. दिस इज अ विसिनल डाईफ्लोराइड और विसिनल डाईहेलाइड, एंड दिस इज जैम डाईहेलाइड और जैम डाईफ्लोराइड. मीन्स यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम चेंज हो गया है. सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम चेंज हो गया है. मीन्स इस सिंगल कार्बन से दो फ्लोरीन जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन एटम से एक एक फ्लोरीन एटम जुड़ा है. मतलब एक फ्लोरीन एटम यहाँ से सेपरेट होकर, अलग होकर दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो गया है. मीन्स ये आपस में एक टाइप के पोजिशनल आइसोमर हैं. इसका आप आईयूपीएसी नाम बताओगे पहले वाले का, तो क्या है? 1,1 डाईफ्लोरो साइक्लोप्रोपेन. और इसका यूपीएससी नाम बताएंगे तो 1,2
डाईफ्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इसका मतलब ये दोनों के दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं, और पोजिशनल आइसोमर्स किसके अंदर कंसिडर होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या रेजियो आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए, और बाकी सभी आंसर्स यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे। ओके, सो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो जब भी हमको इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आइसोमेरिक रिलेशन देखना है तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ही चेक करते हैं, उसके बाद में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स शोन आर। फिर से हमको यहाँ पर आइसोमेरिक रिलेशन देखना है इन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में। तो इस टाइप की जब भी हमको स्ट्रक्चर्स दिखाए गए होंगे तो यहाँ पर हमको हमेशा इवन चेंजेस करके दोनों के बीच में रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये एनिस्ट्रोमर है या डायस्ट्रोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, या टू डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग दो कॉन्फॉर्मेशंस दिखाए गए हैं, या फिर ये आइसोमर ही नहीं है। ये आइसोमर तब नहीं होंगे जब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। ओके, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर हम क्या चेक करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है ना। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इवन चेंजेस करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 करूँ और ये कार्बन नंबर 2, तो ये दोनों के दोनों कार्बन किरल कार्बन है, ठीक है ना। मेन जो पूरा का पूरा जो कार्बन स्केलेटन है वो 4 कार्बन एटम्स का है, 1 2 3 4, यानी दिस इज़ अ ब्यूटेन, ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटेन, और उसका डेरिवेटिव है डाईक्लोरो डेरिवेटिव। तो इस स्ट्रक्चर में जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसको इस तरह से वर्टिकल लाइन में रखा गया है, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल या वेज पोजीशंस पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर कार्बन, एक्चुअल में अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड नंबर कार्बन और थर्ड नंबर कार्बन यहाँ पर किरल कार्बन है, क्योंकि चारों की चारों जो अटैच ग्रुप हैं वो डिफरेंट हैं। देखिए, सेकंड नंबर कार्बन पे क्लोरो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, और ये CH CL CH3, ये पूरा का पूरा ग्रुप। तो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। इसी टाइप से सेकंड किरल कार्बन पर भी चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको दोनों किरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि अगर दोनों किरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन दूसरे स्ट्रक्चर के कॉन्फ़िगरेशन से एग्जैक्टली सेम मिलता है तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, और अगर दोनों किरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन दूसरे स्ट्रक्चर के दोनों किरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन से जस्ट अपोजिट है तो ये एनिसोमर होंगे। और अगर एक किरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम है लेकिन दूसरे किरल सेंटर का डिफरेंट है तो ये डायस्ट्रोमर होंगे। ओके, तो इस तरफ से हमको यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है। तो ये वाले कंपाउंड्स जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम एग्जैक्टली सेम है, देख लीजिए। सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम कैसे चेक करते हैं? देखो, इस कार्बन के साथ में क्लोरीन अटैच है, मिथाइल, हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप, तो दूसरे वाले में भी इसके साथ में वही सेम अटैच है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग सेम है, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। अब हम किसकी तरफ जाएंगे? अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ जाएंगे और एनिसोमर्स और डायस्ट्रोमर्स चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन होने की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, कॉन्फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी भी है। अगर ये कॉन्फॉर्मेशन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी तो ये एक्चुअल में दोनों की दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो पहला जो किरल सेंटर है यानी सेकंड नंबर कार्बन जो है, वहाँ पर आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन सेम है। देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों किरल कार्बन्स का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर क्लोरीन एटम लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम लेफ्ट साइड में, ओके। पर यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ आ गया है, हाइड्रोजन इधर आ गया है। मीन्स इन दोनों कार्बन्स का कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्लोरीन एटम की पोजीशन तो सेम है, लेकिन मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं। मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया है यानी वेज पर आ गया है, और हाइड्रोजन डैश पर चला गया है मतलब वर्टिकल लाइन पर चला गया है। तो मीन्स इन दोनों कार्बन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट है सेकंड किरल कार्बन का।
अब हम चेक करते हैं दूसरे कार्बन के लिए। दूसरा किरल कार्बन यानी कार्बन नंबर 3, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन सेम है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पर क्लोरीन एटम इस मॉलिक्यूल में राइट हैंड साइड पर है वेज पर, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन एटम लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है वेज पर। ओके, और इसी तरह से हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया है, हाइड्रोजन भी इंटरचेंज हो गया है। तो इसका मतलब सेकेंड नंबर जो किरल कार्बन है उस पर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, मतलब दोनों किरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एनेंटियोमर होंगे। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, और बाकी यहाँ पर सब रिमूव हो जाएंगे। सो दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर एनेंटियोमर टू ईच अदर, मीन्स बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। Now next question, the molecules shown are, again हमको इसमें आइसोमेरिक रिलेशन देखना है। साइक्लोप्रोपेन रिंग, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, मिथाइल एंड हाइड्रोक्सिल। यहाँ पर भी मिथाइल और हाइड्रोक्सिल, मतलब दोनों की दोनों फॉर्म्स में, दोनों स्ट्रक्चर्स में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम भी सेम है। ओके, आप देखिए, चेक कीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम भी सेम है। तो इसका मीनिंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं हो सकते। ओके, ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स नहीं हो सकते। अब हमको यहाँ पर या तो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है या फिर कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर हमको आइडेंटिकल चेक करना है तो आइडेंटिकल के लिए हमको इन दोनों मॉलिक्यूल्स की सुपर इम्पोजिबिलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं एक दूसरे पर तो ये आइडेंटिकल होंगे। तो आपको इस मॉलिक्यूल को इस प्रकार से रोटेट करना है या इसको टर्न करना है कि ये हम ट्राई करें कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। तो अगर आप इसको चेक करें तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज शायद मे बी हो रहा है। ओके, अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से टर्न करें, मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ इसमें। यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। ओके, अगर आप इसको किसी भी तरह से आप रोटेट करके देखो, टर्न करके देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर को सेकंड पे सुपर इम्पोज करने का ट्राई करो तो ये यहाँ पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। चलिए हम एक इसमें काम करते हैं, इसको यहाँ पर 180 डिग्री या इसको 120 डिग्री रोटेट करते हैं। स्ट्रक्चर को 120 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, ओके, और यहाँ आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री रोटेट करें इस साइक्लोप्रोपेन रिंग के प्लेन में, साइक्लोप्रोपेन रिंग के प्लेन में से जो एक्सिस जा रहा है वहाँ पर 180 डिग्री अगर आप इसको रोटेट करो, ओके, 180 डिग्री अगर यहाँ रोटेट करें तो हमको क्या मिलेगा। स्ट्रक्चर देखिए, OH ग्रुप जो है वो देखो 180 डिग्री रोटेट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ क्या आएगा OH ग्रुप, और यहाँ डाउन साइड में क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को चेक कीजिए तो दोनों स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में आइडेंटिकल नहीं है, मतलब दोनों की दोनों सुपर इम्पोजेबल किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके सामने रखेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ओके, देखिए दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर
हम क्या बताएंगे कि ये दोनों के दोनों आपस में एनीशियोमर्स हैं। ओके, तो बाकी सभी की पॉसिबिलिटी यहाँ से हट जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बोथ आर एनीशियोमर्स। एक दूसरा तरीका भी है इसको फाइंड आउट करने का, जिसमें आपको RS कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली आना चाहिए कि हम कैसे RS असाइनमेंट करते हैं किसी किरल सेंटर के लिए। अब ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है इसमें एक्चुअल में 2 किरल सेंटर हैं। ओके, लेट मी इरेज दीज। टोटल इसमें 2 किरल सेंटर है। ये कार्बन एटम किरल कार्बन है क्योंकि यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, this CH2 group and this CH3 group. So these all 4 groups which are directly attached to this carbon atom are different. So this carbon atom is chiral carbon. इसी तरह से ये कार्बन एटम भी किरल कार्बन होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये किरल कार्बन है और ये भी किरल कार्बन, मतलब 2 किरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब इन किरल कार्बन्स का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, RS असाइनमेंट अगर इनको असाइनमेंट करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि सबसे पहले हम सपोज़ इस कार्बन एटम का या इस जो किरल कार्बन है इसका हम अगर असाइनमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कैसे आएगा। अप साइड में क्या है? हाइड्रोजन एटम। दिस हाइड्रोजन एटम मीन्स हम बता देंगे ये वेज पर है। और डाउन साइड में यहाँ पर यानी इस रिंग से साइक्लोप्रोपेन रिंग के नीचे की तरफ क्या है? हाइड्रोक्सिल। मतलब आप इसको अगर देखें ऊपर की साइड से तो ये आपको दिखाई देगा वेज पर, OH ग्रुप। ओके, नाउ यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? CH3 और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? CH2 ग्रुप। अब हमको RS कॉन्फ़िगरेशन में 2 रूल्स हमारे आते हैं, CIP रूल, काहान इनगोल्ड प्रिलॉग्स रूल, और दूसरा किरलिटी रूल, जिसमें किरलिटी रूल काहान इनगोल्ड प्रिलॉग रूल में हम जो चारों की चारों जो ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर बताते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जनरली हम डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम्स हैं टेट्राहेड्रल कार्बन से या किरल कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स हैं उनकी एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सा ग्रुप है? CH2, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? CH3 एंड H। मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम्स हैं उनका हाईएस्ट जो एटॉमिक नंबर होगा वो ऑक्सीजन का होगा, तो इसको हम नंबर 1 देंगे क्योंकि ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, किरल कार्बन से। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? 8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कार्बन का कितना है? 6। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों कार्बन है उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इस कार्बन से आगे जो है वो एक, ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक कार्बन से, लेकिन ये कार्बन किससे जुड़ा है? CH2 ग्रुप और CH2 ग्रुप, मतलब हम इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद में थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी जो लोवेस्ट एटॉमिक नंबर वाला है यानी हाइड्रोजन एटम उसको मिलेगी। अब यहाँ पर हम किरलिटी रूल अप्लाई करते हैं तो 1 to 2, ओके, 1 to 2 एंड 2 to 3 मूवमेंट करेंगे, यानी 1 to 2 एंड 2 to 3 इस तरह से आर्क फॉर्मेशन करेंगे और उस आर्क की डायरेक्शन से देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज आता है तो हम R असाइन करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो हम S असाइनमेंट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे मूवमेंट करेंगे, हम करेंगे 1 to 2 एंड 2 to 3, इस तरह से मूवमेंट आएगा, 1 to 2 एंड 2 to 3। तो इस तरह से मूवमेंट आप देखो कैसा मूवमेंट हो रहा है। दिस इज क्लॉकवाइज, ओके, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। बट इसमें एक दूसरा रूल और आता है किरलिटी रूल में कि अगर फोर्थ नंबर ग्रुप या फोर्थ नंबर जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो वेज पर प्रेजेंट है तो हम इस आंसर को रिवर्स कर देते हैं। मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो मतलब R आना चाहिए, लेकिन जो फोर्थ नंबर प्रायोरिटी ग्रुप है वो वेज पर प्रेजेंट है यानी टुवर्ड्स द व्यूअर प्रेजेंट है, तो हम आंसर को रिवर्स कर देंगे। मतलब इस किरल सेंटर के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S, ओके। इसी टाइप से हम इस सेकंड किरल सेंटर का भी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने कौन सा कार्बन चूज़ किया है जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगेन हम इसको चेक करते हैं, इस कार्बन को।
इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट आना चाहिए, मतलब आर आना चाहिए। तो इसको हम कैसे असाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है CH2 ग्रुप, यहाँ पर CH3, यहाँ पर वेज पर क्या है OH, ओके, और यहाँ डैश पर क्या है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन एटम इस रिंग सिस्टम के डाउन साइड में है तो मैंने इसको डैश पर लिया है, और OH ग्रुप जो है वो अप साइड में है तो यहाँ वेज पर लिया है। अब फिर से वही हम प्रायोरिटी रूल के हिसाब से, CIP रूल के हिसाब से नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर, ये 4th नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ओके, नाउ 1 to 2 एंड 2 to 3 कैसा मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मूवमेंट मतलब हम क्या असाइनमेंट करेंगे R। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो 4th नंबर प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पर प्रेजेंट है। ओके, वो डैश पर प्रेजेंट है, मीन्स हमें जो यहाँ पर आंसर मिला है वो एज इट इज़ रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करना। यानी कि यहाँ पर ये जो किरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन या उसका असाइनमेंट क्या है R। तो देखिए पहले वाले में S है और दूसरे वाले में R। इसी तरह से आप देखिए अगर इस कार्बन के लिए R आएगा तो इसके लिए S आएगा, और सपोज कीजिए अगर इस कार्बन का S होगा तो इसका R होगा। मतलब कि अगर हमको S और R कॉन्फ़िगरेशन मिलता है किसी एक मॉलिक्यूल में, दो किरल कार्बन का, तो दूसरे में वो क्या मिलेगा RS, यानी जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा एनीशियोमर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मिरर इमेज तो होंगे लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ओके, तो आंसर यहाँ पर क्या है, एनीशियोमर्स। So next part of this lecture I will discuss later. Now thank you for listening this lecture of MCQ explanation related to stereochemistry.